हेलो स्टूडेंट। देखो, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड वी हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिस्कस किया था बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स and non-benzenoid aromatic compounds. How will you define benzenoid aromatic compounds? The compound which contain one or more aromatic ring, that is benzene. Such compound are called as what? Benzenoid aromatic compounds. And the compound which contain aromatic ring other than what? Benzene, they are called as non-benzenoid aromatic compound. We have discussed the examples also. अब ये जो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? बेंजीन। तो आओ देखते हैं कुछ पॉइंट्स अबाउट व्हाट बेंजीन। तो बेंजीन जो होता है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन was given by a scientist called as what? Kekule. Kekule is the scientist who given the structure of benzene. तो structure of benzene was given by scientist called as Kekule. Kekule is the scientist who given the structure of benzene. अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 होता है। C6H6 मतलब इट हैज 6 कार्बन एटम्स and 6 hydrogen atoms. All the 6 carbon atoms of benzene, these 6 carbon atoms of benzene are placed at the 6 corner of hexagon and 6 hydrogens are attached to the 6 carbon atoms. मतलब ये जो 6 कार्बन है ये हेक्सागन के 6 कॉर्नर के ऊपर इस तरह ऐसा अटैच कर दिया जाता है। दिख रहा है आपको? तो दिस इज व्हाट माय हेक्सागन एंड दे आर प्लेस एट द 6 कॉर्नर ऑफ योर हेक्सागन एंड ईच कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड बाय 6 1 hydrogen atom. That is what 6 hydrogens are attached to the 6 कार्बन एटम्स, राइट। ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ये कैसा है मॉलिक्यूल? प्लेनर है कि नहीं है? क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ऑल 6 कार्बन ऑफ बेंजीन are placed at 6 corner of hexagon and 6 hydrogens are attached to 6 hydrogens are attached to 6 carbon atoms. Molecule is nothing but is planar. तो इसका 6 कार्बन मैं ऐसा अटैच कर देता हूं, ये 6
हेक्सागन, 6 कॉर्नर के हेक्सागन पे 6 कार्बन एटम्स को 6 कॉर्नर ऑफ हेक्सागन प्लेस कर दिया। ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ अटैच किया हुआ, एक एक हाइड्रोजन ईच कार्बन को अटैच कर दो, राइट। नाउ इन बेंजीन देयर इज अ अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इन बेंजीन there is double bond as well as single bonds are present and they are in alternate manner. So you draw the double bond here, double bond, single bond, double bond, single bond and the double bond. So this is the actual structure of your benzene molecule. If you observe the benzene जो है कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, each carbon atom in benzene is what? sp2 hybridize. So the carbon atom of benzene is sp2 hybridize. sp2 hybridize. तो structure of benzene is given by a scientist Kekulé. Molecular formula of benzene is what? C6H6. The 6 carbon atoms of benzene are placed at the 6 corner of hexagon, or each carbon atom is directly attached to one hydrogen atoms. That is what? 6 hydrogens are attached to 6 carbon atoms. 6 carbon atoms. Now this ring has alternate double bond and single bond. If you observe this carbon atom, the hybridization of this carbon atom is sp2 hybridize. क्या होता है? sp2 hybridize. अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना होगा? तो आई राइट हियर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। देन एक है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। देन देयर इज व्हाट? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कितना? सिंगल बॉन्ड। एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर. So if I say carbon carbon single bond, this is carbon carbon single bond and carbon carbon single. The bond length is found to be 1.39 angstrom. And carbon carbon double bond का मुझे मिलता है 1.33 angstrom. And carbon hydrogen bond is found to be 1.09 angstrom. कितना होता है? 1.09 angstrom. So these are nothing but what? Bond length of this structure. This is what experimentally determined. ये जो है ये सब experimentally bond length is determined. मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज व्हाट? 12 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड्स. तो in the structure, if I do the analysis of this structure, the carbon-carbon bond length is found to be 1.39 angstrom. Carbon-carbon double bond is nothing but 1.33 angstrom, and carbon-hydrogen bond length is what? 1.09 angstrom. Number of sigma bond present in the structures is nothing but what? That is what? 12, and number of pi bonds are nothing but what? 3. अब ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये और सिग्मा बॉन्ड दे आर इन कॉन्जुगेशन एंड ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन दे आर डीलोकलाइज्ड. क्या होता है? डीलोकलाइज. तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं द डीलोकलाइजेशन ऑफ
the delocalization of pi electrons, without changing position of an atom is called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजोनेंस. And structures are called as resonating structure, resonating or canonical structure. अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड, दे आर इन कॉन्जुगेशन, and due to this conjugation there is delocalization of pi electrons occurs, and the delocalization of pi electron without changing position of an atom, that phenomena or process called as what, resonance. और जो स्ट्रक्चर बनेंगे they are called as resonating structure और canonical form. कैसे स्ट्रक्चर होगा, देखो ये मैं स्ट्रक्चर, इसको मैं ऐसा लेता, ये मेरा बेंजीन है, ये बेंजीन. अब क्या होगा, बेंजीन का रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड पेयर इधर आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, ये इस तरह मूव होते रहता है. तो आपका स्ट्रक्चर ना, अब देखो ये इस तरह बन जाएगा, you will get like this structure. This pi bond is comes to here, ये पोजीशन दिख रहा है, इसमें पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट था, इसमें पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, बट द पोजीशन ऑफ एटम्स आर व्हाट, कांस्टेंट. तो these two structures are called as what, resonating structure, and the phenomena or process called as what, resonance. क्या बोलते हैं इनको, रेजोनेंस. अब ये दोनों स्ट्रक्चर कभी भी बेंजीन के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. These two structures are not capable to explain all the properties of the benzene. That's why they are called as resonating structure or canonical form. So these two structures, structure 1 और structure 2. अब ये क्या होगा, ये फिर से ऐसा मूव होते रहेगा, मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह लिख सकता हूं, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द, इस सर्कुलर पाथ के अंदर. मतलब क्या होगा, इसको मैं ऐसा सर्कल दिखाऊं तो, राइट, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, राइट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड. क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड. And structure 1 and structure 2 they are called as what, resonating structure. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, resonating structure. तो what are resonance? Resonance is a phenomena in which pi electrons are delocalized without changing position of an atom is called as resonance, and the structure is called as resonating structure. In resonating structure they are not capable to explain all the properties of that species, right? That's why they are called as what, resonating structure. अब ये resonance hybrid क्या होता है, resonance hybrid का मतलब होता है real structure which explain all the properties of that species. तो ऐसा species जो ऐसा स्ट्रक्चर जो उस स्पीसीज की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे, उसी को हम बोलते हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड. तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज नथिंग बट इट इज रियल स्ट्रक्चर which explain
all the properties of explain all the properties of that species. राइट तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन था इट इज व्हाट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज कैकुले एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज व्हाट C6H6। These 6 carbon atoms are nothing but they are placed at the 6th corner of hexagon, and these six carbon atoms are again attached by a hydrogen atom, one hydrogen atoms. The structure is like this, right? Now if you observe this structure, there is carbon carbon single bond, carbon carbon double bond, and carbon hydrogen single bond. Now what is the length of these bond? The bond length, carbon carbon bond is what found to be 1.39 angstrom, carbon carbon double bond is 1.33 angstrom, and carbon hydrogen bond is 1.09 angstrom. Number of sigma bonds are, total number of sigma bond present in the structures are what, 12, and there are 3 pi electrons. There are 3 pi bonds, 3 pi bonds. Now this structure, ये जो carbon atom in structure, in this structure, if you observe the carbon atom is what, sp2 hybridized, and this molecule is what, planar molecule. क्या होता है, प्लेन। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो मुझे बताओ यदि मैं बोलूं HCH में बॉन्ड एंगल आपको पूछूं तो कितना आएगा, 120 डिग्री, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को यदि आप देखते हो तो इट हैज व्हाट, 3 पाई बॉन्ड्स एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स, दे आर इन कॉन्जुगेशन, दे आर इन कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से these pi electrons are delocalized, these pi electrons are delocalized. So the delocalization of pi electrons without changing position of an atom is called as what, resonance, and the structure is called as what, resonating structure. This structure 1 and structure 2, they are called as resonating structure because they are not capable to explain all the properties of your benzene. That's why they are resonating structure. अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है फिर से यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसा घूमते रहता है इस सर्कुलर पाथ पे, इस हेक्सागोन में। तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ, बरोबर है। तो इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूँ या इस तरह, इज अ सिमिलर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अंडरस्टूड स्टूडेंट। आप इसको कॉपी करो और फिर कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, बेंजीन। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कभी कभार बोला जाता है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो बेंजीन के अंदर क्या दो एलिमेंट्स है, कौन से दो एलिमेंट्स है, एक तो कार्बन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो यदि मैं यहां डैश स्ट्रक्चर बना दूं बेंजीन का, डैश स्ट्रक्चर, अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था डैश स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इस तरह था। यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन को हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच है,
यहाँ भी अटैच है, और ये क्या है, ऐसा डबल बॉन्ड है. A bond is made up of what? Pair of electrons. A bond is made up of what? Pair of electrons. Now इस कार्बन को देखो, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. So it is capable to form how many bonds? 4 bonds. देखो इस कार्बन को देखो, 1 2 3 and 4 bonds बना रहा है. तो सेम वे I will draw the electronic structure. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए ना, आई विल ड्रॉ फर्स्ट स्केलेटन ऑफ हेक्सागोन. ये इस तरह है. अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स था ना, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं. तो दिस इज 1, यहाँ 2, और यहां मैं ऐसा ले लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन. ये दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड. ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनेगा. एंड दिस इज व्हाट आल्सो, तो डबल बॉन्ड. दिस इज व्हाट? सिंगल बॉन्ड. एंड देन अगेन क्या आएगा मेरा? डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड. फिर अगेन क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड. एंड देन अगेन क्या आएगा मेरा? डबल बॉन्ड. एंड अगेन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड. ना ये तो आप देखते हो, इस हाइट कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो आई ड्रॉ हियर, दिस इज व्हाट H, सॉरी इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन. नाउ अब हाइड्रोजन में लेके आता हूं. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. तो इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा. इधर आप हाइड्रोजन ले लो, क्रॉस, हाइड्रोजन क्रॉस. हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एंड दिस इज व्हाट हाइड्रोजन विद क्रॉस. ये आप देखते हो, तो दिस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल बॉन्ड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. दिस इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, where my dot represents what? Electron of carbon, electrons of carbon, and cross represents what? Cross represent what? Electrons of hydrogen, electron of hydrogen. अंडरस्टूड. तो आप लोगों को क्या करना है? पहला मैंने क्या लिया? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन. एक याद रखना, बॉन्ड इज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एक पेयर ये, एक पेयर, तो डबल बॉन्ड. सिंगल है तो एक ही पेयर है ना, तो सिंगल बॉन्ड. ये 2 पेयर है तो डबल बॉन्ड. सिंगल है तो पेयर, सिंगल बॉन्ड. डबल पेयर है तो डबल बॉन्ड, एंड सो ऑन. अंडरस्टूड स्टूडेंट. अब इसको कॉपी करो. अब फिर हम लोग देखते हैं aromaticity and anti-aromaticity, which is very very important. तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी क्या होता है और व्हाई वी स्टडी एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी से पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. मतलब इफ द मॉलिक्यूल, इफ द कंपाउंड possess एरोमेटिसिटी, मतलब दैट कंपाउंड इज व्हाट? स्टेबलाइज. इट इज व्हाट? स्टेबल. तो एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, explain the stability of the compound. मतलब ये तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिसिटी बता रहा है, मतलब दैट कंपाउंड इज व्हाट? स्टेबलाइज. अब स्टेबलाइज हो सकता है, स्टेबल है. अब मुझे बताइए कि ये जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी क्या कंडीशन अप्लाई करता है, या कौन सा कंडीशन एरोमेटिसिटी के लिए अप्लीकेबल है. तो ये मुझे किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी चेक करना है, तो आई हैव टू सी द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी. तो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी क्या है?
पहला कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर। मतलब योर कंपाउंड मस्ट बी क्या होना चाहिए, साइक्लिक मैनर में होना चाहिए और एक प्लेन के अंदर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 और sp हाइब्रिडाइज। मतलब जो भी आपका एटम्स या जो भी प्रेजेंट है दैट एटम्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मस्ट हैव क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एंड टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है 4n+2। दिस रूल इज कॉल्ड एज व्हाट, हकेल रूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हकेल रूल। हकेल इज अ साइंटिस्ट हु गिवन दिस रूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, हकेल रूल। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 4n+2 वेयर n इक्वल टू होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो n का जो वैल्यू होगा 0, 1, 2 and 3 and so on। तो फॉर योर कंपाउंड टू बी शो एरोमेटिसिटी, योर कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए and the total number of pi electron equal to 4n+2, that is called as Huckel rule, where n equal to होता है 0, 1, 2, 3, 4 and so on। एरोमेटिसिटी से कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता चलता है। ये कोई कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी है मतलब दैट कंपाउंड इज स्टेबल। क्या ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट। हम कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर से अभी डिस्कस करते हैं। तो यहां मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मेरे को देखने का बेंजीन, ये बेंजीन जो है ये एरोमेटिक है कि नहीं है देखते हैं। पहले एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सभी, इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी नहीं बताएगा, मतलब दैट इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो देखते हैं। अब देखो सभी कार्बन एटम किस फॉर्म में अरेंज है, सभी कार्बन एटम साइक्लिक के फॉर्म में अरेंज है, मतलब इट हैज साइक्लिक मैनर। दैट मीन्स व्हाट, दे आर अरेंज इन व्हाट, हेक्सागोन एंड इट इज व्हाट, प्लेनर। तो इट इज व्हाट, साइक्लिक एंड प्लेनर। तो ये क्या है आपका, साइक्लिक भी है, इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक एंड प्लेनर है। दूसरा इसके अंदर देखो, ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। each carbon atom is sp2, each carbon atom is sp2 hybridized, and it possess also a conjugation, और वो conjugation कैसा है, close। conjugation का मतलब होता है alternate double bond and single bond। देखो double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, there is a close conjugation। So this is also a close conjugation, and it must satisfy
टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होना चाहिए 4n+2। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 2। मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, पेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से होता है 2 2 और 2 कितने हो गए टोटल हो गए 6। 6 इक्वल टू क्या होता है 4n+2। यदि मैं 4n लिखूंगा तो क्या आएगा 4 n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 अलाउड है कि नॉट अलाउड है अलाउड है। दिख रहा है आपको 1 है कि नहीं है। तो इट इज नथिंग बट व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड राइट। तो बेंजीन को यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो बेंजीन इज अ साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल। ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इट हैज अ क्लोज कॉन्जुगेशन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6। तो 4n+2 n इक्वल टू कितना आएगा 1 1 इज व्हाट अलाउड इन दिस केस सो इट इज व्हाट एरोमेटिक। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आता है बच्चे लोगों को हाउ टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर मेथड। तो I इक्वल टू होता है 1/2 क्या 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन ये फॉर्मूला है। अब इसको ये मेरा I का वैल्यू आता है यहां से ये मेरा I का वैल्यू आ रहा है 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह आ रहा है। तो ये I का वैल्यू आ रहा है 2 तो इट इज sp। ये I का वैल्यू आ रहा है 3 तो sp2 sp3d and this is what sp3d2 and sp3d3। यदि मैं I के वैल्यू के ऊपर से मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि उस एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हम लोग कैसे देखो। इस कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 4 कितना होगा 4 तो मैंने 4 रख दिया यहाँ। टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इस कार्बन को कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है 1। तो स्टूडेंट देखते हैं सम कंपाउंड्स दे आर एरोमेटिक है कि नहीं बेस्ड ऑन व्हाट एरोमेटिसिटी कंडीशन। तो मैंने एरोमेटिसिटी कंडीशन के लिए क्या क्या बताई और कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए ईच एटम्स ऑफ द रिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए and it must satisfy total number of pi electron equal to 4n+2 that is Huckel's rule where n equal to 0 1 2 3 and 4। अब यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर 1। यदि मैं इस स्ट्रक्चर में देखूं तो ये क्या होगा देयर इज अ रेजोनेंस ये इधर जा सकता है बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। जैसे ये इधर जा रहा है इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया खोया जो खोता है वो पॉजिटिव होता है चार्ज क्या आएगा प्लस मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ये इस तरह बन जाएगा
इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये आपका इस तरह बनेगा। देखो ये इधर आया तो इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अगेन ये इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अराउंड दिस सर्कल। सो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ क्या, दिस इज व्हाट पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर मैं प्लस दिखा दूं, राइट। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, दूसरा देयर इज अ क्लोज कॉन्जुगेशन भी है, राइट। अब देखते हैं मेरा दैट इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज, बरोबर है। अब इसमें आपको अप्लाई करना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास 2, तो 2 इक्वल टू क्या होगा 4n+2, देयरफॉर n 4n इक्वल टू क्या आएगा 0, n इक्वल टू क्या होगा 0। मुझे बताओ n जो है वो अलाउड, n इक्वल टू 0 अलाउड है कि नॉट अलाउड है, इट इज व्हाट अलाउड। अलाउड होने की वजह से दिस कंपाउंड इज नथिंग बट माय एरोमेटिक कंपाउंड। तो कंपाउंड इज साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, इट इज व्हाट sp और sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, एंड इट इज सेटिस्फाइंग टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4n+2, 4n+2। तो n इक्वल टू कितना है 0, n इक्वल टू 0 है तो इट इज अलाउड, सो इट इज एरोमेटिक। इस पे आते सेकेंड। अब देखो ये क्या होगा, ये इधर आएगा, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड। जैसे ये इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया, खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस आ जाए, फिर से ये इधर मूव होगा एंड ये ऐसी तरह सर्कुलेट होते रहेगा रिंग के अंदर। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, इस रिंग के अंदर माइग्रेट होगा और यहाँ एक प्लस चार्ज होगा और एक प्लस चार्ज ही होगा, बरोबर है ना। अगेन आते हैं, मुझे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 2, तो 2 इक्वल टू 4n+2 होगा, अगेन 4n+2, तो 4n इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, देखो n इक्वल टू क्या होगा 0, n इक्वल टू 0 है, अलाउड है कि नॉट अलाउड है, अलाउड है, सो इट इज व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड। क्या एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें आते हैं, अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ माइग्रेट, इसकी तरफ नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा रिपल्शन, ऑलरेडी ये पोजीशन क्या इलेक्ट्रॉन रीच है, तो ये क्या होता है इस तरह होता है, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम क्या होगा लोन पेयर, फिर से ये इधर माइग्रेट होगा, मतलब क्या मेरा जो निगेटिव चार्ज है वो इस रिंग के अंदर ऐसा माइग्रेट हो रहा है, निगेटिव चार्ज, बरोबर है। तो अगेन मुझे बताइए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, पाई 2 and 2 कितने हो गए 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा 4n+2 होगा। Pi electrons, see this is what, it's not a 4, yeah, sorry, yeah, it is not 4, these 2 electrons are also involved in the bond formation, that is what pi bond formation, pi bond, तो ये 2 2 and 2 कितने हो गए टोटल 6, 6 इक्वल टू क्या होगा 4n+2, और 4n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, n इक्वल टू कितना आएगा 1, कितना आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होता है, व्हाई वी स्टडी एरोमेटिसिटी एंड व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एरोमेटिसिटी, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, और हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह हम लोग नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करते हैं,
और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया हुआ है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह हम लोग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी किस तरह डिटरमाइन की जाती है। बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, let us recap what are the conditions required for aromaticity. The first condition for aromaticity is nothing but your compound must be cyclic and planar होना चाहिए। मतलब आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और वो एक प्लेन के अंदर लाई होना चाहिए। जो भी आइटम्स ये प्रेजेंट है वो एक प्लेन के अंदर होने चाहिए। दूसरा, ईच मेंबर ऑफ द रिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए, sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, देयर मस्ट बी अ क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए, क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एंड लास्ट वन, इट मस्ट सेटिस्फाई दैट इज हकल्स रूल 4n, total number of pi electrons equal to 4n plus 2, total number of pi electrons equal to 4n plus 2, where your n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. This rule is given by Huckel's, that's why it is called as what, Huckel rule. अब हम लोग यही कंडीशन को पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आपका जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक है कि नहीं है। अब पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम से ही पता चलता है, इट मस्ट कंटेन मोर देन वन एरोमेटिक रिंग। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इट हैज अ मोर देन वन साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो based on that, it is classified into two types. Polycyclic aromatic compounds are broadly classified into two types. One is called as fused polycyclic aromatic compound and second one is isolated polycyclic aromatic compound. So there are two types of polycyclic aromatic compounds, that is called as fused polycyclic aromatic compound, और दूसरा है मेरा आइसोलेटेड polycyclic aromatic compound, isolated polycyclic aromatic compound, polycyclic aromatic compound. तो how to determine the aromaticity for fused polycyclic aromatic compound and isolated polycyclic aromatic compound? Rules or conditions are same as that of what, aromaticity। जो हम लोगों ने कंडीशन एरोमेटिसिटी के लिए अप्लाई किया, सेम कंडीशन अप्लाई करना है। सिर्फ इसमें एक छोटी सी बात याद रखनी है कि होल रिंग इज कंसिडर फॉर एरोमेटिसिटी, होल सिस्टम इज कंसिडर फॉर एरोमेटिसिटी। तो इन केस ऑफ व्हाट, fused polycyclic aromatic compound, whole system is considered for aromaticity। मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग एरोमेटिसिटी के लिए कंसिडर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां मैंने ये लिया है बेंजीन और दूसरे बेंजीन को मैं इसके साथ फ्यूज कर देता हूं। ये दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, कंबाइन हो गए। दिस बॉन्ड इज कॉमन, एटलीस्ट वन बॉन्ड कॉमन होना चाहिए। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एटलीस्ट वन बॉन्ड मस्ट भी क्या होना चाहिए, कॉमन।
तो ये रिंग क्या है मेरा, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इस रिंग को देखते हैं, ये मेरे एरोमेटिसिटी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला देखो, कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है एंड इट इज प्लेनर। द गिवन स्ट्रक्चर इज साइक्लिक एंड प्लेनर। each atoms, each member of the ring is what, sp2 hybridized. There is a cyclic conjugation, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. There is a cyclic close conjugation and it must satisfy क्या होना चाहिए, Huckel's rule. What are Huckel's rule? Total number of pi electrons equal to 4n plus 2. तो मेरे पास बताओ टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 2 and 2. If I count total number of pi electron is what, 10. It's not 6, it's 10. 1 2 3 4 5 है. One pi bond is made up of 2 electrons. There are 5 pi bonds. 5 into 2 कितना हो गया, 10. There are 10 pi electrons. Therefore 10 equal to होगा 4n plus 2. Therefore 4n इक्वल टू आएगा क्या, 8 और n इक्वल टू क्या होगा, 2. मुझे बताओ बच्चा लोग, n इक्वल टू 2 इन एरोमेटिसिटी अलाउड है कि नॉट अलाउड है? इट इज अलाउड, क्योंकि मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4n plus 2 where n equal to 0 1 2 3 4 5 6 and so on. तो n equal to 2 आ रहा है, n equal to 2 आ रहा है, therefore the given compound is aromatic. This is what aromatic compound, aromatic. Understood? Now let's see one more example here. Suppose मैं दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां. I take one more example here and this part I write here. ये क्या बताता है, एरोमेटिसिटी बताता है, तो I write here aromatic. Now I take one more example in this case. So you take a three-membered ring, three benzene ring and they are fused together. 3 benzene rings and they are fused together. They are what, fused together. Again you apply the same rule. आपको क्या करना है, whole system is considered for aromaticity. एक रिंग को देख के नहीं बोलना है, पूरा सिस्टम देखो. ये क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है. दूसरा, देयर इज व्हाट, ईच एटम्स और ईच मेंबर ऑफ द रिंग इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज. तीसरा, देयर इज अ क्लोज कॉन्जुगेशन, देयर इज अ साइक्लिक कॉन्जुगेशन and it must satisfy the Huckel's rule. Huckel's rule क्या बोलता है, total number of pi electrons equal to 4n plus 2. तो count the total number of pi electron. You count first pi bond. 1 2 3 4 5 6 7. 7 into 1 pi bond is made up of how many electrons, 2. So there are 14 electrons. So your 14 equal to 4n plus 2. Therefore 4n equal to कितना आता है, 12. n equal to क्या होगा, 3. मुझे बताओ, n equal to 3 in aromaticity it is allowed, so it is what, aromatic in nature. So this is what, aromatic. ये क्या है मेरा, aromatic है. तो n equal to 3 in Huckel's rule is allowed. Therefore the given system, the given fused polycyclic aromatic compound is aromatic in nature. Understood? Now let us see the second polycyclic aromatic compound. इसमें देखो आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोला. आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग. इंडिविजुअल रिंग इज कंसिडर फॉर व्हाट, एरोमेटिसिटी. आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा, अलग हो जाना. आइसोलेट हो गया, अलग. मतलब क्या, इंडिविजुअल रिंग इन दिस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इंडिविजुअल रिंग इज टेकन फॉर एरोमेटिसिटी, इज कंसिडर फॉर एरोमेटिसिटी. तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं,
individual ring is considered for aromaticity. Let us write its example here so it become more clear. ये मेरा एक बेंजीन रिंग है, ये मेरा दूसरा बेंजीन रिंग है. दिस इज व्हाट वन बेंजीन रिंग, दिस इज माय सेकेंड बेंजीन रिंग. इफ यू ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर, these two benzenes are isolated with each other. They are isolated, अलग अलग है. तो मैं क्या करता हूं, पहले इस रिंग को कंसिडर करता हूं और इस रिंग को कंसिडर करता हूं, and I apply all the condition for aromaticity, right? See in the ring, this is what cyclic and planar. Each atoms of the ring is what sp2 hybridized. There is a closed conjugation, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. There is an alternate double bond and single bond, and it is what cyclic. So there is a close conjugation, and it satisfy Huckel's rule. कैसे? Total number of pi electrons कितने हैं? 6. There are 6 pi electrons. Therefore 6 equal to कितना होगा? 4n plus 2. 6 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा? 4n plus 2. मेरा n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1. When n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1, it is allowed कि not allowed? It is allowed. So this ring is what? Aromatic. This ring is nothing but what? Aromatic. अब इस रिंग की बात करता हूं मैं. इस रिंग में भी सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं, and we will get what? 6 equal to 4n plus 2. Again I will get n equal to 1. When n equal to 1 है ना, और यहाँ भी n equal to 1 है, this both the rings are what? Aromatic. Both the rings are nothing but what? Aromatic. Therefore whole system is considered for what? Aromatic in nature. Whole system is said to be what? It is aromatic. Therefore this compound is what? Aromatic. तो पहले आपको क्या देखना है? इंडिविजुअल रिंग देखना है. ये एरोमेटिक होता और ये एरोमेटिक नहीं होता तो मैं नहीं बोल सकता था कि ये रिंग जो पूरा है, ये जो पूरा कंपाउंड है, इट इज व्हाट? एरोमेटिक. तो यदि ये रिंग एरोमेटिक है, ये भी रिंग एरोमेटिक है, तो आई से सिंपली द होल सिस्टम इज व्हाट? एरोमेटिक इन नेचर. आई टेक वन मोर एग्जांपल हियर. यहाँ एक और एग्जांपल मैं लेता हूं. ये क्या है मेरा? अगेन बेंजीन रिंग है. I take another benzene ring and I take another benzene ring. There are 3 benzene rings are isolated with each other. इसमें n इक्वल टू क्या आएगा बच्चा लोग? n इक्वल टू 1 आएगा. यहाँ भी n इक्वल टू क्या आएगा? 1. And here also you will get n equal to 1. It is aromatic. It is also aromatic. It is also aromatic. तो I says whole system, whole structure is what? Aromatic. So this is what? Also aromatic. ये क्या है? Aromatic in nature. Understood? Now we will see some more example. तो इसको मैं नोट में लिखता हूं थोड़ा. सपोज मैंने ऐसा स्ट्रक्चर लिखा है. 2 आइसोलेटेड रिंग हम लोग ड्रॉ करते हैं. ये एक आइसोलेटेड रिंग है और इसको मैं डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर देता हूं. यहां ऐसा कर देता हूं और यहां डबल बॉन्ड है. मुझे बताओ ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है कि नहीं है? दीज आर व्हाट? 2 आइसोलेटेड रिंग है एंड दे हैव अ कॉन्जुगेशन. तो यदि हम लोग देखते तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूं. इस बॉन्ड पेयर को मैं इधर दे देता हूं. बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर. दिस बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर. व्हेन दिस बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, दिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया? खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है. चार्ज क्या आएगा? प्लस. तो दिस कार्बन इज कैरी प्लस चार्ज.
इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो चार्ज लाएगा, कौन सा, निगेटिव। तो दिस कार्बन इज कैरी व्हाट, निगेटिव चार्ज। तो दिस स्ट्रक्चर आई कैन राइट लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूं। दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर, this is double bond, here is what my negative charge, here is my positive charge. Now see this individual ring, consider this individual ring, consider this individual ring, this is what isolated, this is called as isolated polycyclic aromatic compound. अब मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूं कि मेरा ये रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है, ये रिंग मेरा एरोमेटिक है कि नहीं है। ये दोनों रिंग एरोमेटिक होंगे तो मेरा जो होल सिस्टम है वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब बच्चे लोगों के पास दिमाग में आता है क्वेश्चन, क्या सर, व्हाई यू हैव नॉट शिफ्टेड दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कार्बन एटम, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ, बाद में। लेट अस सी, अप्लाई हियर योर हकल्स रूल। This ring is what, cyclic and planar. There is a close conjugation, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, positive charge. This is also a conjugation system. So this is close conjugation. It must satisfy Huckel's rule, that is 4n plus 2 pi electrons. That is total number of pi electrons equal to क्या होगा, 4n plus 2. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4n plus 2। मेरा n इक्वल टू क्या आएगा बच्चा लोग, 1। तो इस रिंग का n इक्वल टू क्या आ गया, 1। दिस रिंग हैज व्हाट, n का वैल्यू क्या होगा, 1। इस रिंग में n का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो n इक्वल टू व्हाट, 1। आई अप्लाई हियर, दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक रिंग है, क्लोज कॉन्जुगेशन है, ईच एटम्स इन द रिंग इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज है। एंड अप्लाई हियर हकल्स रूल, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दिस lone pair become bond pair become lone pair, मतलब this pi electrons, this lone pair of electron which is present on this carbon atoms are involved in the pi bond formation. Therefore the total pi electron present in this ring is what, 6. It is not 4. This lone pair of electron is also taking part in the bond formation because this lone pair is in conjugation with your pi electrons. तो 6 इक्वल टू क्या होगा, 4n plus 2. अगेन मेरा n इक्वल टू क्या आएगा, here 1. When n इक्वल टू 1 here है, n इक्वल टू 1 here है, तो this is aromatic, this is also aromatic, and due to this the whole system is what, aromatic. Whole system is aromatic. Whole system is aromatic. अंडरस्टूड बच्चा लोग. अब मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन के पास ही जा रहा है, क्यों ऐसा? सपोज आपने कार्बन और कार्बन के बीच में देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये पाई बॉन्ड को मैंने यहां शिफ्ट किया था, इस पे प्लस चार्ज लिया, इस पे माइनस चार्ज. नाउ आप क्या बोलो, सर इफ आई शिफ्ट दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कार्बन एटम, व्हेन यू शिफ्ट दिस पाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम, इट्स एरोमेटिसिटी गेट डिस्ट्रॉयड. क्यों? क्योंकि यदि यहां निगेटिव चार्ज आएगा तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8. Total number of pi electrons equal to 8. N will not equal to what, 0, 1, 2, 3, 4. मतलब इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एंड जब एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गया तो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा. हर कंपाउंड क्या चाहता है, एरोमेटिक बनना चाहता है, एरोमेटिसिटी को अटेन करना चाहता है. क्यों? फॉर स्टेबिलिटी. तो यदि मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां दे देता हूं तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, अटेंड हो जाएगी, एंड हेंस द होल स्ट्रक्चर बिकम व्हाट,
होल स्ट्रक्चर बिकम व्हाट, मोर स्टेबल, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिसिटी को अटेन कर लेगा, इसलिए द होल स्ट्रक्चर बिकम व्हाट, मोर स्टेबल. दैट्स व्हाई आई हैव शिफ्टेड दिस पाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम, नॉट टू दिस कार्बन एटम. अंडरस्टूड. एक और एग्जांपल हम लोग इसी टाइप का लेते हैं. पहले आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं. तो बच्चा लोग आओ देखते हैं सेकेंड एग्जांपल. सेम आइसोलेटेड सिस्टम का लेता हूं. मैंने ना रिंग ऐसा लिया हुआ, 3 मेंबर रिंग ले लिया है और इसको ना मैं ऐसा अटैच कर देता हूं. दिस इज व्हाट, ऐसा मैंने इसको अटैच कर दिया है, ये ऐसा 5 मेंबर रिंग, और यहाँ ऐसा पाई बॉन्ड बताया. और मैंने पूछा द गिवन स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक है कि नहीं है. तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले तो आइडेंटिफाई करो ये आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के जैसा, आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ना पहला मैं इस तरह अरेंज कर देता हूँ. आई टेक दिस पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ इस कार्बन की तरफ. अब अगेन क्यों इस कार्बन की तरफ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वो बाद में हम लोग देखते हैं. तो आई शिफ्ट दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स टू हियर, बॉन्ड पेयर बिकम क्या, लोन पेयर. सो इट फॉर्म अ लाइक दिस स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ये इस फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. दिस कार्बन कैरी ओवर, दिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया बच्चा लोग, खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा, प्लस. यहाँ चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा. लोन पेयर आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लोन पेयर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो चार्ज ला रहा है, क्या ला रहा है, माइनस. नाउ यू आइडेंटिफाई योर इंडिविजुअल रिंग कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है. यदि मैं इस रिंग की बात करूं तो ये मेरा रिंग जो होगा साइक्लिक है, प्लेनर है. ईच एटम्स इन द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज है. देयर इज अ क्लोज कॉन्जुगेशन, लोन पेयर्स, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. There is a close conjugation and it is satisfying what, Huckel's rule. कैसे, what is Huckel's rule? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है, 4n+2. तो यदि मैं इसका लिखूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन. वाई बच्चे लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस लोन पेयर is involved in the bond formation. lone pair become bond pair, bond pair become क्या हो जाएगा, lone pair. तो ये क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है. जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा मतलब इट हैज अ पाई इलेक्ट्रॉन, इट एक्ट एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 2 and 2 टोटल कितने हो गए, 6. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n+2. देयरफॉर n इक्वल टू क्या आएगा, अगेन 1. when n equal to 1 है मतलब it is allowed कि not allowed, it is allowed in the Huckel's rule. So this ring is nothing but what, aromatic. अब इस रिंग की बात करते हैं. ये रिंग को देखो और अप्लाई करो, क्या, एरोमेटिक कंडीशन. ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है. ईच आइटम्स इन द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है. देयर इज अ क्लोज कॉन्जुगेशन, pi bond, single bond, positive charge. There is a conjugation and it is satisfying what, Huckel's rule also. कैसे देखो, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n+2 हो जाएगा. n इक्वल टू आएगा मेरा 0. n इक्वल टू 0 है, इट इज अलाउड. ये भी अलाउड है. दोनों कंपाउंड क्या हो गए, दोनों रिंग क्या हो गए मेरे, एरोमेटिक हो गए. जब ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, तो आई कैन से द होल सिस्टम इज व्हाट, एरोमेटिक. तो द होल सिस्टम इज एरोमेटिक. सिस्टम इज एरोमेटिक. whole system is what, aromatic. समझा बच्चा लोग. now we'll take some 2 more example. सपोज मैंने ये ऐसा स्ट्रक्चर लिया हुआ है एक,
ये ऐसा स्ट्रक्चर लिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड O किया हुआ है और यहाँ पाई बॉन्ड किया हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर मेरा ना ऐसा है, एक स्ट्रक्चर जो है ना वो मेरा ऐसा है। और मैंने पूछा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं है। तो लेट अस सी, मुझे बताओ, ये कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। इट हैज ऑलरेडी द पाई इलेक्ट्रो सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज व्हाट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। दिस इज व्हाट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या ऑक्सीजन कार्बन से डरेगा? नहीं, क्या बोलेगा, जो तेरा है वो मेरा है। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? बिकॉज इट इज व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर टू योर कार्बन एटम। सो बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा? लोन पेयर। दिस बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो अच्छा बताओ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पाया कि खोया? पाया। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पाया कि खोया? खोया। जो खोता है वो पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या आएगा कार्बन के ऊपर? प्लस। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पाया, इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज लाया क्या? माइनस। दिस पार्ट रिमेन एज इट इज। नाउ यू सी योर रिंग, you see your ring, this ring is what aromatic है कि नहीं है? तो मुझे बताओ, ये जो रिंग है ये एरोमेटिक होगा। क्यों? अभी हम लोगों ने किया सिमिलर टाइप, दिस इज व्हाट एरोमेटिक। कैसे? n इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 0। इट इज साइक्लिक, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज, इट इज सेटिस्फाइंग व्हाट? हकल्स रूल। व्हाट इज हकल्स रूल? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n + 2, n इक्वल टू क्या आएगा? 0। n इक्वल टू 0 आता है, इट इज अलाउड, सो दिस इज व्हाट एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। सिमिलरली आई कैन डू फॉर दिस वन। Now same way here also, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? कम है। क्या ऑक्सीजन कार्बन से डरेगा? नहीं, बोलेगा जो तेरा है वो मेरा है। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर। व्हाट यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर? जैसे ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया तो चार्ज लाया क्या? माइनस। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा? प्लस। अगेन यू सी योर रिंग, ये रिंग की बात करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो साइकिल की बात करेंगे, इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो गया? साइक्लिक है, प्लेनर है। ईच एटम इन द रिंग इज व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज है। इट इज देयर इज अ क्लोज कॉन्जुगेशन एंड इट इज सेटिस्फाइंग व्हाट? हकल्स रूल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इक्वल टू 4n + 2। अगेन माई n इक्वल टू क्या आएगा? 1। when n इक्वल टू 1, the given compound is what? Aromatic. It is aromatic. So this compound is also what? Aromatic in nature. अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा होता है आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में ऑलवेज होल सिस्टम इज कंसिडर फॉर एरोमेटिसिटी। पूरा सिस्टम हम लोग लेते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम एरोमेटिक होगा, then only we can say the compound is what? Aromatic. And the fused polycyclic aromatic compound के अंदर एटलीस्ट एक बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा 2 रिंग के बीच में। समझ में आ रहा है? तो एंड आइसोलेटेड में क्या होगा? इंडिविजुअल। आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में इंडिविजुअल रिंग इज टेकन कंसिडरेशन फॉर व्हाट? एरोमेटिसिटी।
यदि हर एक रिंग क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। यदि वो हर एक रिंग एरोमेटिक है तो आई कैन से होल सिस्टम इज व्हाट, एरोमेटिक। यदि कोई एक रिंग भी एरोमेटिक नहीं है तो आई कैन नॉट से कि द गिवन कंपाउंड और स्ट्रक्चर इज व्हाट, एरोमेटिक इन नेचर। तीसरा केस, यदि आपका स्ट्रक्चर इस तरह दिया है कुछ ऐसा, तो आपको इस तरह देखना पड़ेगा कि आपको ये पाई इलेक्ट्रॉन को यदि आप शिफ्ट करते हो तो रिंग की एरोमेटिसिटी बढ़ रही है, एरोमेटिसिटी अटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि रिंग एरोमेटिसिटी अटेंड करेगा तो कंपाउंड जो है वो स्टेबल की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो यदि मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज के आने की वजह से इस रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, एरोमेटिसिटी अटेन कर लेगा। और जब ये एरोमेटिसिटी अटेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये भी एरोमेटिसिटी अटेन करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्लोज कॉन्जुगेशन, सेम हकल्स रूल, प्लेनर, साइक्लिक, क्लोज कॉन्जुगेशन, सभी रूल जो कंडीशन है एरोमेटिसिटी की आप इस पे अप्लाई करो। दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, सो आई कैन से सिंपल होल स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक इन नेचर। अंडरस्टूड बच्चों लोग, आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एरोमेटिक। मैंने आपको बताया था द फर्स्ट simplest and the first aromatic compound was discovered by Faraday is nothing but benzene. So let us see how to prepare benzene from different method. पहले आप इसको कॉपी करो।